بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبود ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل کیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے۔ اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا، میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبود آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں نامکمل ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت قبض کر لی، لیکن اس کی ترتیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا کہ آپ ابھی بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر مابعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک جانب یہ عبادتیں کیا کرتے اور دوسری جانب اللہ کے حکام کی سری خلاف ورزی کرتے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک سخت ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ پاک نے ان پر لعنت کر دی۔ 587 قبل از مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 80 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔
दूसरी जानब बख्तनसर बादशाह ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है इस हरकत का अजाब उसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल अज़ मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल पर हमला कर दिया और बाबल के वली अहद को शिकस्त देकर बाबली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम की जानब इजाज़त दे दी और साथ में उनको हैकल सुलेमानी के नए सिरे से तामीर की भी इजाज़त दे दी। साथ में उसकी तामीर के लिए हर तरह की मदद फराहम करने का वादा भी कर दिया। चुनांचे हैकल की दूसरी तामीर 538 कबल अज़ मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम सरंजाम देने वालों को अपने हमवतन दुश्मनों की इतनी ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दर अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलती का शिकार रहा। उसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहां के गवर्नर ज़रूबाबल और सरदार कहन यशवा की हौसला अफजाई की कि वह हैकल की तामीर शुरू कर दें। उन्होंने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया और पूरी कौम के पुरजोश ताईद और ईरानी हुकाम और बजाते खुद बादशाह की आशीर्वाद से हैकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में पाया तकमील को पहुंचाया। लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक मालूम न हो सका कि बख्तनसर बादशाह ने उसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि उस मुकद्दस संदूक को मजीद तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन यहूदी उसकी तलाश में पूरे पूरे अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आमतौर पर तारीखदान हैकल की दूसरी दफा तामीर और 2 दफा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात सामने आई है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। इस हैकल सुलेमानी को 3 बार तामीर किया गया, लेकिन उसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह था, उसने जब इसकी बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हो गया कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडस ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मरम्मत करना चाहता है, उसे गिराना नहीं चाहता। चुनांचे 19 कबल अज़ मसीह में उसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया। यह तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। यह काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मजालम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतजिर थे, जो दोबारा आकर उनको पहली जैसी शान और शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइट्स था। यह रूमी जर्नैल बाबल के बादशाह बख्तनसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। उसने एक दिन में ही लाखों यहूदियों को तय कर दिया। उसने हेरोडस के बनाए हुए अजीमुशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी। उसने यरूशलेम से यहूदियों को हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। यहूदी दुनिया में बिखर कर और रुस्वा होकर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चे इसराइल को फलस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर उस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने की इजाजत मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी 1000 साल पुरानी गंदी फितरत से बाज न आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद नहीं रहे। एक बार फिर हमसाया मुल्कों के लिए
अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 8 जून 1978 को उसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1978 में उर्दन के मगरिबी किनारे पर काबज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की नासमझी और बुज़दिली की वजह से अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगा कर रख दी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इस हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि ये एक बार फिर अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी। अमेरिका के सदर का इसराइल के दारुल खलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करे और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सरजमीन को फतह किया तो रोमियों के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहां मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़े है वहां उनका माबुद था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुकद्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वह हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़े दरवाजे के मुतालिक भी समझते हैं कि यह क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब उस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुसलमानों की रिवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है।